Assalamu alaikum and good morning, dear students. Hope you all are fine. Now this is your general science class and I'm your teacher Sana. So kindly be attentive and keep your rough register and stationery with yourself to note on the important points. Okay. So let me revise the previous lecture, what we have studied yesterday. Yesterday, we have studied the classification of living things, that living things are classified into two. As a simple classification, living things are classified into two groups, plants and animals. Then we have studied the importance of classification, that due to classification, we can determine the similarities and differences among the organisms. We can study their structure and other characteristics, and we can study the relationship among the organisms. Then we have studies five kingdom system. In five kingdom system, we have studies kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, and kingdom Animalia. Let me revise all the kingdoms. In kingdom Monera, we have studies that they are microscopic, they are unicellular, they have a simple body structure, but they have no nucleus in their cytoplasm. Then we have studies Protista, that they are mostly aquatic. They are also unicellular, but they have nucleus in their cytoplasm. Plants are also included in this kingdom because the plants included in this kingdom have chlorophyll, so they can make their own food. Then we have studies kingdom Fungi. In kingdom Fungi, we have studies that they they may be either unicellular or multicellular. In the unicellular example, unicellular fungi, that is yeast, and the multicellular fungi, that is mushroom. Then we have studies that fungi are usually live in moist, they can grow in the moist places, shady places, as they do not have chlorophyll, so they cannot make their own food. So from where they get food, they absorb food from the place where they live. ये हमने पढ़ा था, थ्री किंगडम्स हमने पढ़े थे, आइए मैंने रिवाइज किया. अब हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांटे. As the name indicate, kingdom Plantae and Animalia. Plantae and Animalia both are Latin words. Both are what? Latin words. In kingdom Plantae, as the name indicate, the organisms of this kingdom have the ability to make their food. जहाँ पर भी ये बात आ जाए, have the ability to make their food, चाहे वहाँ पर plants mention हो या ना हो, it's mean बात हो रही है plants की, plant की kingdom की बात हो रही है, ठीक है? So organism included in this kingdom have the ability to make their own food because they have chlorophyll. The organism included in this are usually green in color. Chlorophyll की बात आ गई, माइंड में रखे कि chlorophyll actually कहती ही इसी green color को है. Chlorophyll की बात आ गई तो it's mean they are green in color. ठीक है ना? तो kingdom Plantae mean plants. Plantae एक Latin में इसको Plantae कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर kingdom Plantae में include है flowering plants and non-flowering plants. Flowering plants and non-flowering plants. Flowering plants यहाँ पर वो plants है जो कि flower producing plants है, ठीक है? Seed bearing plants, seed producing plants, उसको कहते हैं flowering plants. The plants whose produce flowers. Examples of flowering plants are sunflower, roses, mustard, and apple, lemon. These are the examples of flowering plants. Fruits किस चीज से बनते हैं? Flowers से ही बनते हैं ना? और fruits के अंदर क्या होता है? Seeds होते हैं ना? So they are flowering plants and also seed bearing plants. The non-flowering plants which they do not produce flowers. Example of these are यहाँ पर given है book में, fern and pine. Pine is a tree.
is they have a needle like leaves. पाइन जो चलगोजे का वो ट्री देखा है ना, एग्जैक्टली दैट इज, ये वही चीज है, ठीक है। अब फर्न्स है, फर्न्स क्या चीज है, दे आर आल्सो फ्लावरलेस प्लांट, हैव अ फेदरी फ्रॉन्ट्स, उसके जो लीव्स होते हैं ना ऐसे, ये जो परिंदों के पर नहीं होते, एग्जैक्टली सेम फेदरी लीव्स इसके होते हैं, ठीक है, फर्न्स। सो दे बोथ आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट। किंगडम प्लांट की समझ आ गई। Kingdom planting में क्या include है? The organism of this kingdom have chlorophyll. They have the ability to make their own food, and they are green in color. Clear? Now let's move to the next kingdom. Kingdom Animalia. As the name indicates, Animalia. Animalia means animals. Animals. Latin word है Animalia. Latin word animalia है, और इसमें जो organisms include है, जाहिर सी बात है, as the name indicate, so the organism included in this kingdom are animals. अब हर कैटेगरी के animals animalia में include है. They do not have chlorophyll. Chlorophyll इसमें नहीं है. It's chlorophyll की जो characteristic है, ये सिर्फ plant के पास है. किसके पास है? Only plant के पास ये characteristic है. Only plants can make their own food, while animals depends on plant for their food. Animals क्या करते हैं? वो plant पर ही depend करते हैं अपनी food के लिए, ठीक है? So the organism included in this kingdom are called animals. They do not have chlorophyll and they cannot make their own food. They can move usually from one place to another. ये एक जगह से दूसरी जगह पर, ये एक जगह से दूसरी जगह को हरकत करते हैं. While plants cannot move from one place to another. Clear? Kingdom planting में all plants include है. Plants की characteristic ये है कि they have chlorophyll, they can make their own food, they can make it, but they cannot move from place to place. While animals में जो kingdom Animalia है, Animalia में animals include है. The characteristic of animals is what? जो कि plants को animals से differ करती है, वो क्या है? दोनों living things है ना. अब animals में क्या है कि animals do not have chlorophyll while plants have chlorophyll. So plants can make their food, animal cannot make their food. Animals food कहाँ से लेते? ये क्या? They take food from plants. Plants से ही food लेते हैं ना. And some animals जो है वो like lion है, tiger है, they can eat and other animals, ठीक है? So animals cannot make their food. फिर एक property animals की है कि animals can move from one place to another place, while plant cannot move from one place to another. Plants can grow only. Plants can grow only, ठीक है? Plants cannot move from one place to another place. So ये हो गया 5 kingdom system, ठीक है? 5 kingdom system की समझ आ गई आप सबको? Clear? Comments में बता दें. अच्छा, now let's move to the classification and characteristic of flowering plants. अब हम पढ़ेंगे kingdom plant को. बच्चों मेरी आवाज क्लियर है ना? आवाज यहाँ पर तो आवाज क्लियर है. आप लोग अपना नेट कनेक्शन चेक करें. कनेक्शन चेक करें, आवाज सही आ रही है. Okay. Now let's move to the classification of plants. Plants are divided into 2 major groups: flowering plants and non-flowering plants. ठीक है? जैसे अभी हमने एक्सप्लेन किया कि फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं, फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स एंड दोस प्लांट्स व्हिच डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स. ठीक है? अब हम पढ़ेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स को फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू 2 मेजर ग्रुप्स. फ्लावरिंग प्लांट्स ओनली, ठीक है? फ्लावरिंग प्लांट्स को डिवाइड किया गया है 2 मेजर ग्रुप्स में, दैट इज द मोनोकॉट प्लांट एंड द डाइकॉट प्लांट. व्हाट? मोनोकॉट प्लांट एंड डाइकॉट प्लांट. Monocot can also call monocotyledon and dicot can also call dicotyledon. Clear? So देखिए अब इसको monocot. The flowering plants whose seeds have 1 cotyledon are called monocot. Whose seed has 1 cotyledon are called monocot. ठीक है?
वो प्लांट्स जिसकी सीड्स जो है, कोटिलीडन किसे कहते हैं, दैट इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर। जब सीड जर्मिनेट होता है पहले, ठीक है, तो इससे जो लीव निकल आते हैं ना, ठीक है, सो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड कोटिलीडन। So those with one cotyledon are called monocotyledon. One cotyledon mean one seed leaves. Confuse नहीं होना, cotyledon कहते हैं seed leaves को। जैसे सीड जर्मिनेट होता है, अगर सीड से two leaves आते हैं ना, two leaves grow होते हैं, तो it's mean they are dicotyledon। और अगर सीड जर्मिनेट होता है और only one seed leaf उससे निकलता है, तो it's mean that is cotyledon, monocotyledon, ठीक है। Those with one cotyledon are called monocotyledon, or monocot for short. For shortly उसे हम कहते हैं monocot plant, ठीक है। And those with two cotyledons are called dicotyledon, or dicot for short. Monocot, dicot की समझ आ गई? Monocot, शहीद, monocot, dicot की समझ आ गई? बताइए, शाबाश। मोनोकॉट, अच्छा सुनिए, फिर से सुनिए। मोनोकॉट वो होते हैं, वो सीड्स होते हैं, दोज विद वन विच, आवाज नहीं आ रही, अच्छा, those with one cotyledon mean one seed leaves are called monocot. Those with two cotyledons or two seed leaves are called dicot. Dicot plant. समझ आ गई? आयशा फैसल, फेस किस चीज की समझ नहीं आ रही आपको? मोनोकॉट, डाइकॉट की या क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की? ये तो सिंपल क्लासिफिकेशन है बच्चे के। प्लांट्स है, प्लांट्स को टू मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक फ्लावरिंग प्लांट्स है, एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है। फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं। वो प्लांट्स जिस पर फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, जिस पर फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, और जो सीड बेयरिंग होते हैं, ठीक है, मीन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं। एग्जाम्पल्स है इसके, जैसे सनफ्लावर को देखे, वो फ्लावरिंग प्लांट भी है और सीड भी प्रोड्यूस कर रहा है ना। जैसे एप्पल है, एप्पल भी तो ये फ्रूट्स किस चीज से बनते हैं? फ्लावर से ही फ्रूट्स बनते हैं ना। और फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं? सीड्स इनक्लोज्ड होते हैं, सीड्स इनक्लोज्ड होते हैं ना। सो दैट इज कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। अब नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं? द प्लांट्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, the plants that do not produce seeds and do not produce flowers. Non-flowering plants, simple classification है, नेम से ये इंडिकेट है। नॉन फ्लावर आ जाए तो मीन फ्लावर प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, फ्लावरिंग आ जाए तो इट्स मीन फ्लावर प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्लियर? फिर फर्दर क्लासिफिकेशन हुई है फ्लावरिंग प्लांट्स की इनटू टू मेजर ग्रुप्स, दैट इज मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट्स। मोनोकॉट और डाइकॉट कहते किसे हैं? मैंने आपको अभी बताया कि जब सीड जर्मिनेट होता है ना मोनोकॉट प्लांट्स की, अब मैं समझाती हूँ आप लोगों को। जैसे जब हम सीड ग्रो करते हैं ना, ठीक है, जब सीड जर्मिनेट होता है और बिगिनिंग में जो उस सीड से जो, फॉर एग्जांपल अगर एक मैज है, ठीक है, मैज सीड है, ठीक है, उसे हमने ग्रो किया। अब उसे क्या किया? जब वो जर्मिनेट होता है, उससे जो लीफ निकलते हैं ना, लीफ, उससे कहते हैं कोटिलेडन। Cotyledons are called seed leaves. So agar those with one cotyledon means one seed leaves are called monocotyledon, or monocot for short, and those with two seed leaves are called dicotyledon or dicot for short. Examples देखे, अभी ये monocot, dicots आप लोगों को मैं example से समझाती हूँ तो clear हो जाएगा, ठीक है। मोनोकॉट प्लांट्स की एग्जाम्पल दे रहे हैं, राइस है, वीट है, मैज है, ठीक है। डाइकॉट प्लांट्स की एग्जाम्पल है, रोस है, ग्राम है एंड बीन्स है, ठीक है। अब आप लोगों को मैं समझाती हूँ कि ये मोनोकॉट डाइकॉट को आप लोग किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हो। आप लोगों ने इसे क्लियरली समझना है, ठीक है। मोनोकॉट डाइकॉट प्लांट्स को देखे, अब मोनोकॉट सीड को देखे और डाइकॉट सीड को देखे, शाबाश। डिफरेंस क्या है? The seed of a monocot plant has only one seed leaf and the seed of a dicot plant have two seed leaves. देखे ना, सीड्स जर्मिनेट हुए हैं
तो जब सीड जर्मिनेट हुई है तो मोनोकॉट सीड को देखे, डाइकोट सीड को देखे। The seed of a monocot plant has only one seed leaf or cotyledon, while the dicots have two seed leaves or dicotyledons. Clear? Seeds को देखे दोनों, एक से वन सीड लीफ निकला है तो दूसरे से दो सीड लीव्स निकले हैं, तो वन इज मोनोकॉट एंड द सेकंड वन इज डाइकोट। ठीक है, नो द सेकंड वन इज, सेकंड जो है वो लीव्स है। अब लीफ मोनोकॉट और डाइकोट की लीफ किस तरह है देखें। द लीव्स ऑफ ए मोनोकॉट प्लांट्स आर नैरो, लॉन्ग एंड नैरो। ये लॉन्ग होते हैं और नैरो होते हैं। आप लोगों ने व्हीट, गंदम और मैस के वो जो लीव्स देखे हैं ना, लीव्स, तो वो नैरो होते हैं और क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं। और जो उसके एंड दे हैव पैरेलल वेन्स, दे हैव पैरेलल वेन, जैसे स्ट्रेट लाइंस में, स्ट्रेट लाइंस में इसके ऊपर लाइंस होते हैं, वेन्स होते हैं। ठीक है, आप लोगों को याद हो हमने लीफ ड्रॉ किया था। ठीक है, लीफ में हमने मिडरिप ड्रॉ किया था, मिडरिप से हमने जो साइड्स वाइज वो जो वेन्स बनाए थे ना, याद है ना सबको, तो एग्जैक्टली वही वेन्स की बात हो रही है यहाँ पर। पैरेलल वेन्स मीन स्ट्रेट लाइन में वेन्स है। सो द मोनोकॉट प्लांट, द मोनोकॉट लीव्स are narrow and long and they have parallel veins running in a straight line, while the dicot plants have a net-like veins and crisscrossing all over the leaf. डाइकोट प्लांट्स, ये जितने भी प्लांट्स, जो जितने भी लीव्स होते हैं ना, उसके दरमियान में मिडरिब होता है एंड क्रिस क्रॉसिंग उसकी वेन्स होती है जो कि ऑल ओवर द लीफ फैली होती है। ठीक है, वाइल डाइकोट, मोनोकॉट में क्या होता है, ये जो उनके जो लीव्स होते हैं, दे आर नैरो एंड लॉन्ग एंड दे हैव अ पैरेलल वेन्स रनिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? लीव्स की बात क्लियर हो गई, सीड्स की बात क्लियर हो गई। लेट्स मूव टू द वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल तो जाहिर सी बात है स्टेम, अब हम दोनों का स्टेम स्टडी करते हैं। ठीक है, वस्कुलर बंडल एक्चुअली कहते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? दैट इज ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कहते हैं वस्कुलर सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। याद आ गया ना, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम कैरीज वाटर एंड फ्लोएम कैरीज व्हाट? फूड ऑल ओवर द प्लांट। जाइलम वाटर कैरी करता है ऑल ओवर द प्लांट, वाइल जो फ्लोएम है वो फूड कैरी करता है। ठीक है, तो अब ये वस्कुलर बंडल्स हम स्टडीज करते हैं कि मोनोकॉट में ये वस्कुलर बंडल्स किस तरह अरेंज्ड है एंड डाइकोट में वस्कुलर बंडल्स किस तरह अरेंज्ड है। ठीक है, तो सुने, वस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन रिंग इन द डाइकोट स्टेम। देखे, डाइकोट स्टेम को देखे, ये वस्कुलर बंडल्स जो है वो रिंग फॉर्म में अरेंज्ड है, while scattered throughout the stem in the monocot। while जो monocot stem है उसमें ये वस्कुलर बंडल scattered है, scatters मीन बिखरी हुई है, और ये जो डाइकोट स्टेम है उसमें ये वस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड है रिंग फॉर्म में। ये एक खत्म हो जाए, वस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड है रिंग फॉर्म में। ठीक है, तो एक डिफरेंस ये हो गई। फिर ये जो एक डिफरेंस, अब इसके फ्लावर्स की डिफरेंस है। फ्लावर्स किस तरह अरेंज होते हैं देखें। इफ अ फ्लावर्स हैज 3 पेटल्स, पेटल्स कहते हैं जो लीफ, जो वो नहीं होती वो रोज, रोज तो देखे है ना, रोज पेटल्स जो इसके वो पेटल्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए, इफ अ फ्लावर हैज 3 पेटल्स, पेटल्स और a multiple of 3, so it means it is a monocot flower. But if a flower has number of petals 4 or for example multiples or 4 or 5, so it's mean it is a dicot flower. Clear? अब क्वेश्चंस पूछे, शाबाश। मोनोकॉट, डाइकोट, कहो कि एक क्वेश्चन करना है। अच्छा, एक एक में क्वेश्चन करना है, एक साथ नहीं। ठीक है, ताकि सबको समझ आ जाए। अब पूछे, शाबाश। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में पूछे, अगर किंगडम की समझ नहीं आई है तो किंगडम्स में पूछे। कितना टाइम इसका?
अभी क्या करना है आपने? शाबाश, क्वेश्चन पूछिए, शाबाश। शहीर क्वेश्चन पूछो जी। इसी तरह हरकतें करते रहोगे तो ब्लॉक कर देंगे आपको, ठीक है? ओके, आप लोगों ने क्वेश्चंस नहीं मोनोकोट मस्ती और कोट मसला और जी। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह।